Welcome to the class and welcome to the channel. And I welcome you in another class, another video. And this video is all about question answers and the questions which you asked, the questions which you sent. So we will discuss those questions, and due to a large number of questions, so we will discuss these questions or discuss these sessions in several parts. Okay, so you will get some parts uh, with respect to this topic, this question answer from you, question answer from students, and apart from that, I will upload some videos regarding your preparation, regarding your like short booster type videos, which will be focusing on some specific important topics before this CSI examination, which you should look into before the examination. So that will be our 5 days booster preparation for CSIR, and um, some more videos will come in upcoming days, like in a few days. Today is Thursday, so Friday, upcoming Friday, Saturday, Sunday, on Monday. So within this period, there are a lot of videos uh, are waiting, and they are in queue for you, so that you will be um, you'll get benefited from these sessions. So I hope you are doing well, and if any question arises, let me know. Let me discuss those questions for you. Just send those questions over the comment section or the links below, which are specifically for Telegram channel. So you can join the channel and then send your video. You can send your video, send your doubts or confusions. So if you are new to the channel, make sure you subscribe the channel and like the video and share the video with your friends, so that they will get benefited from these classes also. So just like and share also. Apart from that, please subscribe the video, subscribe the channel. So the first question, this is your question. One of you send this question. The question says the pedigree below represent the inheritance of an autosomal recessive trait. So first of all, we need to clarify. We need to check this is the autosomal recessive trait. So just I told you earlier that in case of autosomal recessive trait and or any kind of pedigree question, you need to make a cross. Okay, you need to check the cross in all over all the generations. In all the generations you need to check the cross. सभी जनरेशन में आपको वो जो क्रॉस मतलब पूरा का पूरा क्रॉस करके देखना है कि कोई एक ट्रेट, कोई एक कैरेक्टर किस तरह से इनहेरिट हो रहे हैं. तो इसको हम सपोज मान लेते हैं एक एलील है कैपिटल है, दूसरा एलील है स्मॉल है, दोनों एलील मौजूद होंगे. सो जो ये सभी इंडिविजुअल्स हैं, आप देख सकते हैं सभी नॉर्मल है, सिर्फ ये इंडिविजुअल जो है ये अफेक्टेड है और ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट बताया गया है. तो इसका जो जीनोटाइप होगा वो डेफिनेटली स्मॉल ए होगा और कोई ऑप्शन नहीं है. तो स्मॉल ए इसका अगर होगा, ये इंडिविजुअल अगर स्मॉल ए है, तो एक स्मॉल ए आया होगा फादर से और एक स्मॉल ए आया होगा मदर से. तो फादर वुड बी कैपिटल स्मॉल ए कैरियर एंड मदर वुड बी कैपिटल स्मॉल ए कैरियर. ओके, सो we need to we need to determine the probability that individual 6, this one, individual 6 is a heterozygote. तो हमें सिर्फ इंडिविजुअल 6 के बारे में बताना है कि इंडिविजुअल 6 हेटेरोजाइगोट होगा. इस चीज़ का प्रोबेबिलिटी क्या होगा. आप देख ही सकते हैं कि अगर नॉर्मल यहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल है, तो नॉर्मल के जो जीनोटाइप है दो ही पॉसिबिलिटी हो सकते हैं. एक हो सकता है कैपिटल है, दूसरा हो सकता है कैपिटल स्मॉल है. तो हमें पता नहीं होता है, देख के पता नहीं चलता है कि कौन सा इस जीनोटाइप का है. लेकिन ये जो फोर्थ इंडिविजुअल है और फिफ्थ इंडिविजुअल, इसके बारे में हम कंफर्म है. कैसे कंफर्म है? इसके ज़रिए. ये जो सेवेंथ इंडिविजुअल है इसके ज़रिए. तो ये जो फोर्थ इंडिविजुअल और फिफ्थ इंडिविजुअल है, दीज टू आर पेरेंट्स ऑफ 6 and 7. ठीक है. तो तब देखिए ये इंडिविजुअल 6 इंडिविजुअल जो है ये नॉर्मल दिख रहा है आपको ना, ये नॉर्मल दिख रहा है आपको, बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है.
तो नॉर्मल में से वो कैपिटल कैपिटल भी हो सकता है, कैपिटल स्मॉल भी स्मॉल ए भी हो सकता है। कैसे आप बोलेंगे कैसे? तो ये जो क्रॉस है, फोर्थ इंडिविजुअल और फिफ्थ इंडिविजुअल का जो क्रॉस है, फोर्थ और फिफ्थ का जो क्रॉस है, इनके जो देखिए इनके जो जीनोटाइप है, कैपिटल है स्मॉल है, कैपिटल है स्मॉल है। तो इनसे इन दोनों से आपको तो कैपिटल है कैपिटल तो मिल ही सकता है ना, कैपिटल है। आपको कैपिटल है स्मॉल ए भी मिल सकता है और आपको स्मॉल ए मिल सकता है। तो कैपिटल है तो मिल सकता है यहाँ पे। तो कैपिटल है होने की संभावना भी है यहाँ पे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ये जो सिक्स्थ इंडिविजुअल है जिसके बारे में पूछा गया है, ये कभी भी स्मॉल ए नहीं हो सकता। अगर स्मॉल ए होता तो ये तो अफेक्टेड हो जाता। तो ये तो हमें पता चल रहा है कि ये अफेक्टेड नहीं है, ये नॉर्मल है। तो अगर ये नॉर्मल है तो हमें ये जो स्मॉल ए है इसको प्रोबेबिलिटी के कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करना है, हमें सिर्फ इन तीनों को कंसिडर करना है। अभी इन तीन में से हमें किस चीज़ के बारे में बताना है? हेटेरोजाइगोट के बारे में बताना है। तो ये तो होमोजाइगस है, ये दिस इज होमोजाइगोट। तो हेटेरोजाइगोट ये है और ये है। तो ये तीन नीचे हम लिखेंगे, तीन में से कितने हेटेरोजाइगोट है? 2 है ना, 3 में से 2 आने की चांस है हेटेरोजाइगोट, और ये होमोजाइगोट है। ठीक है, तो हमें 3 में से लेना है, 4 में से नहीं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा 3 और न्यूमरेटर में आएगा 2। तो आंसर इज 2/3। जस्ट यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। आपको देखने का जो नज़रिया है उसको थोड़ा सा सही करना है, तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलील एक्स स्मॉल एल, एक्स ऊपर है स्मॉल एल, इन ड्रोसोफिला इज रिसेसिव। तो ये इसको बताया गया है रिसेसिव है, और ये क्या है? सेक्स लिंक्ड है एंड लीथल है। और किस कंडीशन में लीथल होगा वो भी बताया गया है। ये हर कंडीशन में लीथल नहीं होते, ये लीथल होंगे जब होमोजाइगस कंडीशन हो और हेमीजाइगस कंडीशन हो। होमोजाइगस एंड हेमीजाइगस। होमोजाइगस मतलब अगर यहाँ पे सपोज मान लेते हैं एक स्मॉल एल, तो दिस इंडिविजुअल विल डाई। और इसके साथ साथ कौन, किसकी डेथ हो जाएगी? इसके साथ किसकी डेथ हो जाएगी? हेमीजाइगस वाला। तो हेमीजाइगस इज दिस वन, एक्स स्मॉल एल वाई क्रोमोसोम, बिकॉज दिस इज सेक्स लिंक। तो हमें मेल में वाई क्रोमोसोम को कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये इन दोनों इंडिविजुअल के डेथ हो जाएंगे। अगर ऐसे जीनोटाइप हमें मिले तो इंडिविजुअल की डेथ हो जाएंगी। अभी बहुत इजी है, हमें क्रॉस जो हमें बताया गया है उस क्रॉस को करके देखना है और रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है। बताया गया है, इफ अ फीमेल ऑफ द जीनोटाइप दिस एक्स कैपिटल एल एक्स स्मॉल एल, दैट मीन्स दिस इज हेटेरोजाइगस, इज क्रॉस्ड विद अ नॉर्मल मेल। अभी देखिए नॉर्मल मेल जो है इसके जीनोटाइप, इसका जो ये होमोजाइगस है या कुछ और है बताया नहीं गया है। क्यों ऐसा बताया, क्यों ऐसा क्यों है? और जीनोटाइप भी बताया नहीं गया है, क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि मेल, इस केस में मेल की जीनोटाइप 2 ही हो सकता है। एक हो सकता है एक्स कैपिटल एल वाई, और दूसरा कौन हो सकता है? एक्स स्मॉल एल वाई। लेकिन यहाँ पे क्रॉस में नॉर्मल मेल में जीनोटाइप की बात क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अगर क्रॉस किया जाएगा, कोई मेल जो जिंदा है उनको अगर क्रॉस किया जाएगा तो डेफिनेटली उसका जीनोटाइप यही होगा ना। दिस वन मस्ट बी द जीनोटाइप, नॉट दिस वन। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस इंडिविजुअल विल डाई। सो इसके साथ जो क्रॉस होगा वो एक्स कैपिटल एल वाई की ही होगी और कोई किसी की नहीं होगी। What is the ratio of female is to males in the progeny? फीमेल और मेल की रेशियो हमें बताना है। फीमेल पहले आएगा, मेल बाद में। रेशियो में फीमेल कम्स फर्स्ट। सो इन क्रॉस के जो जीनोटाइप मतलब ऑफस्प्रिंग होंगे वो क्या होंगे? एक्स कैपिटल एल, दिस इज फीमेल, राइट। नेक्स्ट क्या आएंगे? एक्स कैपिटल एल वाई, दिस इज मेल, X capital Y male, then X small l y, this individual will die, and last X capital L X small l, this is again female. तो यहाँ पे कितने फीमेल दिख रहे हैं? 1 2। कितने मेल दिख रहे हैं? 1। तो फीमेल इज टू मेल इक्वल टू 2 is to
1. 2 female, 1 male. This will be the answer. So B is the correct answer. बहुत easy है. Next. In an organism, allele for red eye color is dominant over the allele for white eye color. Okay. A cross is made between a white-eyed male, this is important, white-eyed male, and a red-eyed female. In the progeny, all the males, इन दोनों के जो क्रॉस से जितने प्रोजेनी मिले सभी मेल्स, उसमें उनमें से सभी मेल्स जो है वो रेड आइड है, और उसमें जो सभी फीमेल्स हैं वो वाइट आइड है. सो all the males would be red eyed and all the females would be white eyed. And the reciprocal cross, जिसमें reciprocal cross में क्या होते हैं, जो सेक्सेस है उसको रिवर्स करवाए जाते हैं. मतलब जीनोटाइप, जिस जीनोटाइप का पहले मेल था उस जीनोटाइप का भी फीमेल होगा, जिस जीनोटाइप का पहले फीमेल था उस जीनोटाइप का भी मेल होगा. इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस, मतलब चेंज हो जाएंगे, ऑल्टर हो जाएंगे. लीड्स टू ऑल द रेड आइड प्रोजेनी. इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता चला, नीचे जो दिए गए. अभी हम पहले क्रॉस करके देखते हैं, और क्रॉस करके देखिए कि इसमें हो क्या रहा है. अगर डोमिनेंट जो है उसको हम रेड लेते हैं, आर, कैपिटल आर इज रेड, ओके, कैपिटल आर इज रेड, और स्मॉल आर जो है वो है यहाँ पे वाइट. तो रेड इज डोमिनेंट ओवर वाइट. और इसमें और एक क्लू है, आप देख सकते हैं, फीमेल मेल की बात किया गया ना, फीमेल और मेल की बात यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब ये डेफिनेटली मतलब सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड होंगे. अभी देखिए यहाँ पे ऑप्शन को पहले देखते हैं. सेक्स लिमिटेड बताया गया है, सेक्स लिमिटेड एक ऑप्शन में देखिए है, सेक्स लिमिटेड, और एक ऑप्शन में देखिए ऑटोसोमल इनहेरिटेंस. तो एक क्लू आपके सामने है, जब मेल फीमेल स्पेसिफिकली उन्होंने बताया है ना, तो वो मैक्सिमम केस में, मतलब 99% केस में वो कभी भी ऑटोसोमल इनहेरिटेंस नहीं होगा. अभी बात हुई सेक्स लिमिटेड की. तो देखिए कोई एक पर्टिकुलर फिनोटाइप अगर एक जेंडर में, एक सेक्स में अगर एक्सप्रेस करता है, तो वो दूसरे जेंडर में एक्सप्रेस नहीं करेगा, इसको बोलेंगे सेक्स लिमिटेड. तो यहाँ पे देखिए वाइट आइड मेल यहाँ पे मौजूद है, रेड आइड फीमेल यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे देखिए वाइट आइड मेल यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए रेड आइड मेल भी आपको दिख रहे हैं, मेल्स आर रेड आइड. एंड फीमेल जो है उसमें भी देखिए फीमेल भी वाइट आइड भी फीमेल देखिए यहाँ पे है. तो रेड आइड फीमेल है और रेड आइड मेल भी है, मतलब दोनों जेंडर में ही ये चीज़ एक्सप्रेस कर रहा है, ये कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है. तो ये सेक्स लिमिटेड नहीं होगा, दिस कांट बी सेक्स लिमिटेड, ये सेक्स लिमिटेड यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा. नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट ऑप्शन, एंड नेक्स्ट these two options are sex limited. They mention sex linked trait. Okay, so these two sex linked trait, but first we have to make the cross, we have to do the cross. Okay, the cross is, in first cross, the cross is made between white eyed male. Now what would be the genotype of white eyed male? वाइट आइड जो है वो है स्मॉल आर, तो वाइट आइड मेल जो होगा वो स्मॉल आर वाई होगा, और जो फीमेल होगा वो रेड आइड फीमेल है. तो रेड आइड फीमेल में दो तरह की पॉसिबिलिटी है, आइदर कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर. ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर. लेकिन अभी हमें यहाँ पे जो इनके प्रोजेनी के जो मतलब प्रोजेनी में जो इसका फिनोटाइप है, प्रोजेनी का फिनोटाइप है, वो देख के हमें इसका जीनोटाइप जो है वो आइडिया करना है, उसका जीनोटाइप हमें डिसाइड करना है फीमेल का. तो ये डेफिनेटली मेल है, ये डेफिनेटली फीमेल है. तो ऑल द मेल्स आर रेड आइड, बताया गया ऑल द मेल्स आर रेड आइड व्हाइल द फीमेल्स आर वाइट आइड. देखिए ये यहाँ पर आता है, ये पॉसिबल कब होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मेल को आप देखेंगे ना ऐसे करके, क्योंकि वाई क्रोमोसोम यहाँ पे मेल से जो इनके जो सन है उनको वाई क्रोमोसोम मेल से मिलेंगे, फादर से मिलेंगे, लेकिन जो एक्स क्रोमोसोम है वो मदर से मिलेगा. तो अगर कैपिटल आर हो या कैपिटल आर स्मॉल आर हो, तो एक मेल तो रेड होगा, है ना, लेकिन दूसरा मेल रेड नहीं होगा. अगर नॉर्मल तरीके से देखें तो ये जो मेल है ये वाइट होना चाहिए, बट क्वेश्चन में बोला गया है कि
ऑल द मेल्स आर रेड आइड। तो यहाँ पर आ जाती है और एक कॉन्सेप्ट जिसको मैं अभी बताऊंगा, होमोमॉर्फिक सेक्स। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जो दो यहाँ पे क्रोमोसोम दिख रहे हैं आपको, मेल में जो दो क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं, ये तो एक्स क्रोमोसोम है, जो स्मॉल आर है दिस इज एक्स क्रोमोसोम। और ये जो वाई क्रोमोसोम है ना, तो वाई क्रोमोसोम भी इस केस में एक्स क्रोमोसोम की तरह बिहेव करता है। मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। हालांकि हालांकि हमें पता है कि एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम में डिफरेंस है, बट यहाँ पे एक्स एंड वाई क्रोमोसोम इज ऑलमोस्ट सेम। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसको, हम ऐसे रिवाइज करके कैसे लिख सकते हैं फिर इस केस में, मैं आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। तो इसको हम रिवाइज करके कैसे लिखेंगे, देखिएगा, स्मॉल आर, वो जो ये जो दूसरा है इस ये भी होगा स्मॉल आर। मैं डॉट डॉट करके लिखा मैंने आप, ताकि आपको समझ आए। क्रॉस ट्वीट, अभी देखिए सभी, अभी अगर ये स्मॉल आर हो गया, वाई के बदले ये अगर स्मॉल आर हो गया ये वाला, तो फिर ऑफस्प्रिंग में भी मेल और फीमेल में, मतलब जिस क्रोमोसोम जिस ऑफस्प्रिंग में ये स्मॉल आर, ये वाला स्मॉल आर जाएगा, दिस वन, उसमें भी मेल फीमेल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम सेम है। ये एक्स क्रोमोसोम इस एक्स क्रोमोसोम में और फीमेल के एक्स क्रोमोसोम में कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। तो अगर जो ये अगर मेल है और दूसरा अगर फीमेल है, तो फीमेल अगर कैपिटल आर स्मॉल आर होता है जीनोटाइप, तभी आप देखें, तभी आप रिजल्ट देखें क्या आएगा। रिजल्ट ऐसे आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर ये वाला स्मॉल आर दूसरा वाला, और बाकी दो कैसे आएंगे, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को, ये जो स्मॉल आर आया है दिस वन, और ये जो स्मॉल आर आया है दिस वन, ये और ये जिन दोनों में है, ये क्या है, ये दोनों है रेड, और ये दोनों क्या है, ये दोनों है मेल। ठीक है, जिसमें ये दो एक्स क्रोमोसोम आया है, स्मॉलर, ये वाला स्मॉलर, ये वाला स्मॉलर, और बाकी ये जो दोनों है, ठीक है, ये जो दोनों आपको दिख रहे हैं, इसमें भी एक आया ऐसे आएगा, एक सेकेंड, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम तो ऐसा है ना। तो ये जो दोनों है, ये दोनों है फीमेल और ये है वाइट। देखिए तभी जो यहाँ पे उनका जो ऑब्जर्वेशन तभी पॉसिबल है अगर इफ मेल्स, ये जो मेल है ये अगर होमोमॉर्फिक है। होमोमॉर्फिक का मतलब वही होता है कि जिसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम में डिफरेंस नहीं होता है। सो आंसर में ऑलरेडी हमें आंसर मिल गया है, दिस इज अ सेक्स लिंक ट्रेट while male being homomorphic sex, this is the answer। फीमेल नहीं होगा, फीमेल में होमोमॉर्फिक करेंगे तो ये आंसर आप देख सकते करके ऐसा रिजल्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, a recessive inherited disease is expressed only in the individuals of blood group O। उसी ब्लड ग्रुप O में ही एक्सप्रेस, जब जिनके ब्लड ग्रुप O है उनमें एक्सप्रेस होता है एक रिसेसिव इनहेरिटेड डिजीज, एंड नॉट एक्सप्रेस्ड इन अदर ब्लड ग्रुप्स A B and AB। Alleles controlling the disease and the blood group are independently inherited। मतलब दोनों के दोनों क्या है, इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड है, मतलब दो अलग अलग लोकस में प्रेजेंट है, दोनों अलग अलग लोकस में प्रेजेंट है। अ नॉर्मल, अभी क्रॉस है, अ नॉर्मल वुमन विथ ब्लड ग्रुप A and her normal husband with blood group B already had one child with the disease। ठीक है, ये देखिए ये रिसेसिव इनहेरिटेड डिजीज है। तो रिसेसिव इनहेरिटेड डिजीज फॉर एग्जांपल इस वाले जीनोटाइप में ही सिर्फ डिजीज होंगे, है ना, और किसी जीनोटाइप में डिजीज नहीं होंगे। और इसके साथ साथ एडिशनल और क्या चाहिए, ब्लड ग्रुप O चाहिए। तो पहले हम एक लोकस में रिसेसिव जो डिजीज वाला है उसको देखते हैं, दूसरे लोकस में ब्लड ग्रुप को देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंडिपेंडेंटली इनहेरिट है, मतलब दोनों के दोनों इवेंट जो है, दोनों का जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो इंडिपेंडेंट है। दोनों के जो इनहेरिटेंस पैटर्न है ब्लड ग्रुप का
और डिजीज का वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन दोनों एक साथ हो रहे होंगे तभी जाके डिजीज होगा। ब्लड ग्रुप ओ और साथ में स्मॉल ए, ये दोनों एक साथ होंगे तभी डिजीज होंगे। ठीक है, तो अभी क्रॉस करके करते हैं। नॉर्मल वुमेन और नॉर्मल हस्बैंड, ठीक है, दोनों का एक चाइल्ड ऑलरेडी डिजीज उनके पास है, मतलब उस चाइल्ड में उनके जो चाइल्ड है वो चाइल्ड स्मॉल ए भी है और आई ओ भी है, क्योंकि इसमें इसी केस में ओ ब्लड ग्रुप होते हैं। तो अगर जो चाइल्ड है वो अगर स्मॉल ए और आई ओ है, तो जो माता, इनके माता और पिता दोनों के दोनों कैपिटल ए स्मॉल ए होंगे विथ रिस्पेक्ट टू द डिजीज लोकस के रिस्पेक्ट में ये दोनों के दोनों कैपिटल स्मॉल ए मतलब कैरियर होंगे। और जो मदर है वो है ब्लड ग्रुप ए और फादर है ब्लड ग्रुप बी, और इनसे अगर ओ ब्लड ग्रुप वाला ये चाइल्ड यहाँ पे इनका जन्म हुआ है, तो जो मदर है दैट शुड बी आई ओ और ये होंगे आई ओ। ठीक है, ऐसे होंगे। ये है मदर, ये है फादर। अभी प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड चाइल्ड विल ऑल्सो हैव द डिजीज। अगर सेकेंड चाइल्ड इनके आते हैं, जो कि है और ऑब्वियसली आएंगे, जो सेकेंड चाइल्ड आएंगे उस सेकेंड चाइल्ड में ये डिजीज होगा दोबारा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो हमें जस्ट प्रोबेबिलिटी वहाँ पे निकालने हैं। तो जिन लोगों ने मेरा प्रोबेबिलिटी वाला क्लास किया है उनके लिए बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन। अगर आपने नहीं किया है तो आपके लिए बहुत टफ है। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखा है तो एक काम करूँगा, इस क्लास के बाद लास्ट में मैं उसका लिंक जो है यहाँ पे वीडियो में आपको दिखेगा लिंक, तो वहाँ पे जाके आप वो क्लास देख लेना, ताकि इस तरह के क्वेश्चन जो है आप कर सकें। सो कैपिटल स्मॉल है, इन दोनों लोकस को हमें कैसे करना है, इंडिपेंडेंट क्रॉस करना है इसको, क्योंकि ये सेम लोकस है। और इससे ये वाला, इस क्रॉस से ये वाला इंडिविजुअल आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4। जिन लोगों ने मेंडेलियन क्रॉस किया आप जानते हैं 1/4। और अगर ये ब्लड ग्रुप वाला लोकस है आई ओ एंड आई ओ, इन दोनों के क्रॉस से ओ ब्लड ग्रुप आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये भी होगा 1/4। दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट इवेंट एक साथ होंगे, होगा प्रोडक्ट रूल 1/4। ठीक है, 1/4। तो आंसर है 1/16। आंसर है 1/16। दिस इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। अगर आपने बेसिक क्लास नहीं किया प्रोबेबिलिटी के, कर लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरह के क्वेश्चन 4 नंबर के आते हैं, पार्ट सी में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन प्राइमिंग मतलब प्राइमर, आरएनए प्राइमर सिंथेसिस करना। ओके, प्राइमिंग ऑफ डीएनए सिंथेसिस एंड रिमूवल ऑफ द आरएनए प्राइमर का रिमूवल, आरएनए प्राइमर रिमूव कर जब करवाए जाते हैं बिफोर द एक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 काम करने से पहले जब आरएनए प्राइमर को हटाया जाता है, वो कौन करता है। सो यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में, यूकैरियोट बताया गया है, यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में प्राइमेज एक्टिविटी, प्राइमिंग एक्टिविटी यानी कि प्राइमेज एक्टिविटी किसके पास होता है, डीएनए। मैंने बताया था क्लास में, डीएनए पॉल अल्फा। रेप्लिकेशन का क्लास भी मेरा चैनल में पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं रेप्लिकेशन का क्लास यहाँ पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट करके यहाँ पे ऑलरेडी है। सो वो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी मैं दे दूंगा क्लास के बाद। सो आरएनए प्राइमर बनाएगा डीएनए पॉल अल्फा, एंड जो प्राइमर रिमूवल है वो करेगा फेन 1, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1, फेन 1। तो आंसर इज बी, डीएनए पॉल अल्फा एंड फेन 1 respectively. What is the question next? This is a very easy question. Amino acyl tRNAs are escorted to the ribosome by elongation factor. So elongation के दौरान कौन सी elongation factor के मदद से amino acyl tRNA जो है
वो एस्कॉर्ट होते राइबोसोम, राइबोसोम में ले जाया जाता है। और कहाँ पे जाके बाइंड करता है राइबोसोम के? ए साइट में। राइबोसोम के कहाँ पे जाके बाइंड करता है? ये राइबोसोम अगर है, मैंने ट्रांसलेशन क्लास में पढ़ाया था आप लोगों को, इसको बोलेंगे ई साइट, इसको बोलेंगे, बीच में होगा पी साइट और इधर होगा ए साइट। तो इसी ए साइट में, ये ए साइट में इलांगेशन के दौरान टीआरएनए के बाइंड करता है। और कौन करवाता है इसको? ईएफटीएस? नो। ईएफजी? नहीं। ईएफटीयू? यस। और ईईएफ2 जो है ये यूकैरियोटिक जो एनालॉग है, यूकैरियोटिक एनालॉग है किसका? कौन सी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, कौन सी इलांगेशन फैक्टर का? इसी का। जो ईएफजी है उसी का जो यूकैरियोटिक एनालॉग है वो है ईईएफ2। ठीक है, सो इसका आंसर है ईएफटीयू। सो इस पार्ट के लिए इतना ही। ठीक है, तो जो बाकी क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा। तो स्टे अपडेटेड। ओके, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप न्यू है चैनल में, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और आपके जो क्वेश्चन है, आपके जो डाउट है, वो भी इसी तरह से आप भेजिए। तो इस तरह से मैं उन आपके डाउट को भी डिस्कस करूँगा। आई विल बी हैप्पी टू एक्सप्लेन ऑल योर डाउट्स। और आपके जो डाउट्स है कैसे भेजेंगे आप, यहाँ पे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं डायरेक्ट। और या तो आप जो यहाँ पे नीचे एक लिंक होगा एक चैनल का, उस वहाँ पे जाके, एक टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जाके आप उधर भी अपने जो डाउट है, क्वेश्चन है, आप भेज सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन भी इस तरह से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट में। और साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जो अगले आने वाले जो 3-4 दिन है, इसमें आपको बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे मिलेंगे, शॉर्ट वीडियोस, जो कि आपके मतलब एग्ज़ाम से पहले जो चीज़ें आपको नहीं भूलना चाहिए, जो चीज़ें आपको करके जाना चाहिए, उसके ऊपर आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे। सो डोंट मिस दोज वीडियोस प्लीज़। आपके जो यहाँ पे नोटिफिकेशन है चैनल का, नोटिफिकेशन बेल, उसको ऑन रखिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चंस। प्लीज़ कीप आस्किंग, कीप सेंडिंग दिस क्वेश्चंस टू मी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।